Prabhupada Krishnaaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Name Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatadeshitarine Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhuvacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna হরে কৃষ্ণ। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের প্রেরণা ফেস্টিভ্যালে। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রীপাদ চৈতন্য চরণ প্রভু। সবাই প্রভুর জন্য একবার উচ্চস্বরে হরি বল করে হরি বল হরি বল। আমি শ্রীপাদ রণবীর মাধব দাস প্রভুকে অনুরোধ করব প্রভুকে পুষ্পমালা দিয়ে বরণ করার জন্য। তো আপনারা অলরেডি অবগত আছেন প্রভু সম্পর্কে। আমি জাস্ট কয়েকটি বিষয় বলবো। তো শ্রীপাদ চৈতন্য চরণ প্রভু উনি ইঞ্জিনিয়ার বাই প্রফেশন। উনি ইলেকট্রনিক্স এবং টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিটেক সম্পন্ন করেন, যেটা আমরা বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে ডিগ্রি ইউনিভার্সিটি লেভেলের। তো এটার পরে উনি নিজেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চা এবং সেটার বিতরণে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেন এবং পুনে চৌপাটি মন্দিরে মুম্বাইয়ের চৌপাটি মন্দিরে উনি জয়েন করার পর সেখান থেকে উনি ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে এখন বিভিন্ন জায়গায় স্পেশালি নর্থ আমেরিকান কান্ট্রি, ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, এই সমস্ত যে জায়গায় উনি কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করছেন। আমার সৌভাগ্য হয় গত বছর আমি যখন ক্যামব্রিজে পিএইচডি করছিলাম, প্রভুর 3টা সেমিনার আমি অ্যাটেন্ড করি এবং সেখানে প্রভু সায়েন্স এবং স্পিরিচুয়ালিটি এই বিষয়গুলোর উপর বক্তব্য রাখছিলেন ক্যামব্রিজের প্রফেসর এবং স্টুডেন্টদেরকে সাথে নিয়ে। এছাড়া উনি জাতিসংঘে ইন্টারফেইথ এবং শান্তি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। উনি ধর্মীয় যে সংকলন সে বিষয়ে আমাদের সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। আমরা খুবই সৌভাগ্যবান। প্রভুর যদি আপনার শিডিউল দেখেন, উনি এতটাই ব্যস্ত যে আমার মনে হয় না এখানে ইভেন যে প্রধানমন্ত্রী এরকম শিডিউল থাকতে পারে। আমরা অত্যন্ত খুবই সৌভাগ্যবান যে প্রভুকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আমরা পাচ্ছি। প্রভু আজকেই এখানে পদার্পণ করেছেন এবং সাথে সাথে আমাদের আজকে প্রেরণা ফেস্টিভ্যাল অ্যাটেন্ড করছেন। আমরা এই জন্য প্রভু নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। হরে কৃষ্ণ।
क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ आप सबको? अभी थोड़ा प्रोजेक्टर सेटअप हो रहा है, तब तक हम আপনার কতজন হিন্দি ফলো করতে পারবেন? হিন্দি আর ইংলিশ? হিন্দি হলে সবাই অলমোস্ট বুঝতে পারবে। হিন্দি হলে সমস্যা আছে এরকম কয়জন একটা হাত তুলুন। হিন্দি হলে সমস্যা আছে একজন, দুইজন, তিনজন, খুব বেশি নয়। এবং যাদের সমস্যা দেখছে ওনারা আসলে অলরেডি প্র্যাকটিসিং। आप पीछे बैठे सेंटेंस पे फिनिश करने की जरूरत नहीं है। সো যাদের হিন্দিতে সমস্যা হবে তারা একটু পেছনের দিকে বসতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে একজন হিন্দিতে ওনাদেরকে বাংলায় ট্রান্সলেট করে দেবেন। তাহলে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড না হলে একটা এক পাশে যাদের হিন্দি হলে সমস্যা হবে পেছনের দিকে প্লিজ। যাদের হিন্দি বুঝতে সমস্যা হবে আপনারা একটু কাইন্ডলি পেছনের ট্রান্সলেশন হবে। तो आज मैं रामायण और महाभारत के आधार पर डेस्टिनी, दैव, नियति, किस्मत ये क्या है ये समझने के हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हम चर्चा करेंगे कि क्या हमें लिखूंगा यहाँ पे और आ जाएगा तो कि Does destiny leave room for free will? अगर दैव या किस्मत ऐसी कुछ है तो उसमें हमारे लिए कुछ स्वेच्छा की जगह है या नहीं? तो सबसे पहले कि आपसे पूछूंगा कि डेस्टिनी जगह आपने शब्द सुना है डेस्टिनी, दैव, किस्मत, तो इसका अर्थ क्या है? आपको क्या लगता है? डेस्टिनी या दैव, किस्मत, नियति ऐसे शब्द का अर्थ क्या है? बोल सकता है? What do you think? Yes, please. डेस्टिनी वो है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। गुड आंसर, थैंक यू। तो जो चीजें उस पर कंट्रोल नहीं है उसको डेस्टिनी कहते हैं। तो अभी आपने जवाब दिया, इस पे आपका कंट्रोल था या नहीं था? It's true। तो फिर अगला सवाल आता है तो क्या-क्या चीजें डेस्टिनी में आती है? सब कुछ डेस्टिनी में आता है या कुछ चीजें डेस्टिनी में आती है या कुछ भी डेस्टिनी में नहीं आता है या क्या आता है डेस्टिनी में कुछ पता नहीं है? तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं उसको डेस्टिनी कहते हैं। और कुछ उस पे और विश्लेषण, उसका कुछ इलैबोरेशन कर सकते हैं हम? कनेक्टेड है, कनेक्टेड है तो उसके ऊपर ये रिमोट है, वो रिमोट उसके ऊपर कंट्रोल का पैनल है तो उसमें HDMI सेलेक्ट कर दीजिए। HDMI files in both choice settings by USB-C digital video history
आपका ओके थैंक यू। ये मैं make this एक चीज बोले कि बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसको हम डेस्टिनी कहते हैं। तो कोई और इलैबोरेट कर सकते हैं कि क्या क्या कंट्रोल में नहीं है हमारे? ऐसा कुछ कंट्रोल में नहीं है, कुछ कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीजें। एनीवन एल्स? जैसे कि बोलिए। जैसे कि हमारे पिता माता को ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारा बर्थ या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है जिंदगी में वो कंट्रोल में नहीं है। किस कंट्री में हम जन्म लेते हैं, किस परिवार में जन्म लेते हैं, तो हमारा जो स्किन कलर है वो जो है हमारा, अगर हमारा जीवन है तो हमारे जीवन के जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डेस्टिनी से डिटरमिन हुआ है। और कुछ? यस प्लीज। ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, ये अनिवार्य है। ठीक है, तो जो अनिवार्य है, जिसको टाल नहीं सकते हैं, तो उसको हम डेस्टिनी कह सकते हैं। दैट विच कांट बी अवॉइडेड, जो होने ही वाला है। तो जैसे मृत्यु है, बुढ़ापा है, ये सब तो आने वाला है। तो अब ये कह सकते हैं कि ये हर एक के जीवन में, तो सबकी डेस्टिनी क्या सेम होती है? सब एक तरह से सबको बुढ़ापा आने वाला है, सबको बीमारी आने वाली है, सबकी मृत्यु होने वाली है, पर क्या सबको उसी प्रकार की बीमारी आती है? अलग अलग बीमारी आती है, अलग अलग। तो क्या डेस्टिनी सबके लिए सेम है या अलग है? सो हम कह सकते हैं कि इट इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट है, हर व्यक्ति के लिए अलग डेस्टिनी है। तो ये डेस्टिनी कैसे निर्धारित होती है? सॉरी, कर्म से। कौन से कर्म से? प्रीवियस कर्म, तो पास्ट कर्म। क्या हमारी जो डेस्टिनी है वो हम निर्धारित करते हैं या भगवान निर्धारित करते हैं? हम नहीं कहते कि हम नहीं कहते भगवान। इसका आंसर क्या है अभी? सॉरी, हम है, भगवान है, तीसरा आंसर क्या है? हम कर्म करते हैं और भगवान से कर्म का फल देते हैं। तो दोनों कहते हैं। Good, thank you. So, तो जो डेस्टिनी है वो क्या है वास्तव में? तो अभी हम कह सकते हैं कि जब हम जीवन जी रहे हैं तो हाँ, जो डेस्टिनी ये है कि हमने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए हैं, तो उसका एक सम टोटल ऑफ पास्ट कर्म, जो पूर्व जन्म का जो कर्म है उसका टोटल एक सेव हो गया है, और वह अलग अलग समय हमारे जीवन में आता है। तो उसका एक बड़ा कोटा जो होता है वो हमारी शुरुआत में आता है। उसके बाद में कुछ अलग अलग प्रसंगों के द्वारा कुछ उसमें से आते रहता है। मान लीजिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं, तो अभी पेरेंट्स से कभी कभी कुछ बच्चों को इनहेरिटेंस मिलता है। इनहेरिटेंस पता है? इनहेरिटेंस मतलब क्या हिंदी में?
वारिस मिलती है, पर इनहेरिटेंस पर ऐसे नहीं कि तुरंत मिल जाए, ऐसे नहीं कि बच्चा जन्म होता है तो उसके नाम में प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो अब कैसे क्या होता है, जब हमारे माता पिता से कुछ डेट्स आते हैं, जिनका कोई कर्जा होगा, तो वो क्या है कि हमने नहीं फैसला किया पर वो हमें मिलता है। तो अभी वो हमारे माता पिता के कर्म से आया है, पर ये समानता है कि हम इस जगह हमारे जीवन की शुरुआत में इनहेरिटेंस बोला तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, हमको पैसा मिलने वाला है। कर्जा है तो वो नेगेटिव है, वो हमको भरना होगा। तो मैं कनाडा में था, तो एक वक्त के घर में रहता था, वो इनहेरिटेंस लॉ में उनके वो लॉयर, तो कहते हैं इनहेरिटेंस लॉ में अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड है उसमें। एक बार माता पिता ने विल लिख दिया अपना, तो फिर वो बच्चे को पैसे मिल जाएगा। तो क्या होता है, कई बार माता पिता बहुत अमीर हो सकते हैं, पर उनको भय होता है कि हमारा सारा पैसा अगर हमने बच्चों को दे दिया तो वो क्या होगा, वो 5-6 महीने में ऐशो आराम के साथ पैसा खर्च कर दे। तो वो बच्चों के लिए पैसा है, पर वो ऐसे करते हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगा, आपको हर साल इतना पैसा मिलेगा, हर साल इतना पैसा मिलेगा, चाहिए वो तो इतना ज़्यादा मिल सकता है, पर उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इससे क्या है, उनका लॉन्ग टर्म प्लान। और कई बार बच्चे क्या होते हैं, उनको पैसा नहीं चाहिए होता है, तो बाद में वो बिल को कॉन्टेस्ट करते हैं, तो कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि मेरे माता पिता ने जब ये बिल लिखा था तो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो मेंटली अनस्टेबल, और उससे वो बिल को कॉन्टेस्ट का सारा पैसा तो मिलना चाहते। तो फिर वो बता रहे थे कि मेरा सेवा ये है, मेरा जॉब ये है कि वो जो बिल बनाए वो फुल प्रूफ, वो बिल को कोई तोड़ नहीं सकता। यहाँ पे उदाहरण कैसे है कि मतलब कि वही पैसा है, उन्हीं का पैसा है, पर वो अलग अलग समय पे मिल रहा है। तो जो हमारा दैव है, दैव के अनुसार हमारे जीवन में अलग अलग समय में कुछ घटनाएं होने वाली, कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती है, कुछ बुरी घटनाएं हो सकती है। तो ये समझने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं कि एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखेंगे, फिर हम शास्त्रों के हो जाएंगे। अभी ऐसा होता है कि साधारणतः हम कर्म का नियम कहते हैं कि हमने कुछ कार्य किया तो उसका हमको रिएक्शन, एक्शन का रिजल्ट होता है रिएक्शन। तो अभी मान लीजिए कि मैंने जो एक्शन है ये क्वांटिटी 10 मात्रा का किया, तो मुझे रिएक्शन रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, 10। मतलब अगर मैं दुकान में गया, वहाँ पे मैंने $10 कोई चीज़ खरीदी, तो मुझे $10 पे करना चाहिए। पर अगर मान लीजिए कभी ऐसे हो रहा है कि मैंने $10 का कार्य किया है, पर मुझे जो फल मिल रहा है 1000 का मिला। मैंने $10 की कोई चीज़ खरीदी और मुझे $1000 मिला, तो ये कम चीज़ हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पहले मैंने मान लीजिए मैंने $990 का खर्चा किया, तो मतलब यहाँ पे मैंने ये $10 का खर्चा अभी किया है। पर कभी क्या होता है, किसी बड़ी दुकानों में क्रेडिट लाइन होता है। क्रेडिट लाइन मतलब क्या कि वो आप महीने पर खर्चा कर सकते हैं और फिर महीने के अंत में आपको मिला। तो फिर क्या हुआ, पिछले पूरे महीने में उस व्यक्ति ने, या शायद हमने $990 की अलग चीजें खरीदी हुई, तभी कुछ भी पैसा, तभी हमको कुछ भी, तो क्या हुआ, हमने पे नहीं किया। पर अभी जब $10 का खरीदा कुछ, तो क्या हुआ, जो बिल आया है वो $10 का नहीं है, वो $10 प्लस $990। तो ये जो है यहाँ पे $10 जो है वो प्रेजेंट एक्शन है, प्रेजेंट कर्म है। अभी मैंने जो कर्म किया है उसका फल है, और जो $990 है ये पास्ट कर्म है। अभी कई बार ऐसे होता है कि हम कोई छोटी सी गलती करते हैं और दूसरा व्यक्ति हम पे इतना क्रोध हो जाता है कि हमारी जिंदगी में शत्रु बन जाता है। क्या हो गया, छोटी सी बात तो हुई थी, इतना गुस्सा नहीं कर रहे, क्या हो गया?
और ये क्यों होता है ऐसे कि तभी जो दैव आ रहा है, हमारा प्रेजेंट एक्शन जो है वो केवल जो हमारी जो परिस्थिति आती है वो केवल हमारे उस कार्य से नहीं आती। अभी ये पूरा एक स्पेक्ट्रम हो सकता है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या कि ऐसे हो सकता है कि मुझे प्रेजेंट रिएक्शन जो 1000 का मिल रहा है, अभी ऐसे हो सकता है कि वो पूरा 1000 कार्य मैंने अभी किया है और उसका मुझे फल मिल रहा है। तो प्रेजेंट एक्शन 0 है, पास्ट एक्शन 0 है, प्रेजेंट एक्शन 1000 है। मतलब अगर मैं मेरा हाथ अग्नि में डालता हूँ और मेरा हाथ जल जाता है, या मान लीजिए ठंडी है, ठंडी के दिन कोई अगर 15 आइसक्रीम खा लेता है तभी तो उसको स्वादिष्ट लगता है, और अगले दिन रात को वो आइसक्रीम खा रहा है, सुबह उठता है अगले दिन आइसक्रीम, वो चीखता है, स्क्रीम करता है। तो अभी उनका गला खराब हो गया है, तो क्या वो पूर्व कर्म से हुआ था? हाँ, पूर्व कर्म से, पर पूर्व रात्रि के कर्म से, पूर्व जन्म के कर्म से नहीं। तो कभी भी ऐसा होता है कि जो हमें फल मिलता है वो ऐसे हो सकता है कि वो पूरा अभी के ही कर्म का फल हो सकता है, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वो पूरा जो है अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, पर जो पूरा प्रतिक्रिया आ रहा है वो क्या है? पूरा 1000 जो है वो पूर्व कर्म से आ रहा है। अभी मैंने कुछ गलती की ही नहीं है, फिर भी वो मुझे सजा मिलती है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमने किसी व्यक्ति को कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमें उस व्यक्ति के प्रति कोई घृणा नहीं है, पर वो व्यक्ति हमारे शत्रु बन जाता है। क्यों शत्रु बन जाता है? ऐसे हो सकता है कि तुम इस इलाके से हो और इस इलाके के इस व्यक्ति मेरे साथ ऐसे किया था, इसलिए तुम्हारे साथ मैं ऐसा करूंगा। तुम इस धर्म के हो, तुम इस स्किन कलर के हो, तुम इस प्रकार के हो, तो उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी वो व्यक्ति हमारे शत्रु बन गया और मुझे बार बार परेशान करते रहता है। तो क्या है? तो उसमें इस जन्म का कोई कर्म नहीं है, पूर्व जन्म। तो बेसिकली जो पूर्व जन्म का जो कर्म है, जो इसका फल हमें इस जन्म में मिलता है, दैट इज डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब कि पूरा जो स्टॉक है उसमें से कुछ कुछ अभी बाहर निकलता है, और जब वो बाहर निकलता है तो तभी वो हमें उसका परिणाम मिलता है। तो अभी रामायण में बताया गया है कि रामायण में 2 घटनाएं जो है वो बहुत ड्रामेटिक और ट्रॉमेटिक है। ड्रामा मतलब कि नाट्यात्मक रूप से बहुत ही वो रोमांचक है, रोचक है, रोचक है, इंटरेस्टिंग है, और ट्रॉमेटिक है। ट्रॉमा पता है आपको? ट्रॉमा मतलब कि बहुत बड़े हादसा हो जाता है तो उससे बहुत बड़ा दुख जाता है। तो मैं बता सकता है कि रामायण में 2 जो कहानी है, कहानी को पूरा बदल देती है। जैसे कोई मूवी होता है, मूवी में प्लॉट ट्विस्ट होता है, तो कहानी ऐसे जा रही है तो अचानक बदल जाती है। तो रामायण में 2 प्रधान घटनाएं हैं जिससे पूरा जो उसका प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है। कौन सी है? बोल सकता है? पहले राम को बैनिश कर, जो राम अभी एक तरह से उनके बचपन से भी वो आगे बढ़ रहे हैं, राज्याभिषेक होने वाला है, और राज्याभिषेक जब होने ही वाला है तभी क्या होता है? अचानक उनको वनवास दे दिया। तो ये क्या है? आगे जाते तो मतलब कोरोनेशन, उनका राज्याभिषेक हो जाता है, पर ये अचानक बदल जाता है। और वो क्यों होता है? क्यों उनको वनवास जाना पड़ता है? सॉरी आप उसे क्या कोई रावण का वध करेंगे, और रावण का वध उससे होता है, बात वो सही है, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। उसको किस परिस्थिति के कारण होता है? वो कहीं क्या होते हैं, कहीं किसके प्रभाव में आती है? मंथरा के प्रभाव में आती है, और उससे वो एक षड्यंत्र बना लेती है, जिसे कहते हैं कि राम को वनवास मिले। तो तभी दशरथ महाराज डेवास्टेड जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं।
और वो कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि भरत राजा बने, सही है, भरत को राजकुमार बना देना, वो राजा बन जाएगा, तो तुम राम को जंगल में मत भेजो। राम ने कभी तुम्हारा कोई अनादर नहीं किया। जिस तरह से वो अपनी माता का आदर करता है कौशल्या का, उस तरह से तुम्हारा भी आदर किया, तो तुम क्यों इस तरह से राम को वनवास भेजे जाओ? तो राम की कोई गलती नहीं, तो राम को वनवास भेजा। एक तरह से दृष्टि से देखें तो प्रभु श्री रामचंद्र जो है वो भगवान, और वो कर्म के अधीन नियम में नहीं है, पर जब वो इस जगत में आते हैं तो लीला करते हैं, तो दर्शाते हैं हमारे लिए कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए। तो हमें भी, हम हमारे जीवन में विपत्ति आएगी तो कैसे कार्य करना चाहिए। तो जब बाद में भरत आते हैं जंगल में प्रभु श्री रामचंद्र को वापस दिलाने, तो कभी क्या रामचंद्र जाते हैं, वो क्या करते हैं, क्या देते हैं, वो आजकल के जमाने में एक भाई दूसरे भाई को अपनी पादुका देगा तो वो भाई लेके उसके सिर पे मारेगा। यहाँ पे क्या होता है कि वो जो पादुका देते हैं लेके जा रहे होते हैं भरत, तभी श्री रामचंद्र सरस को बुलाते हैं बाजू में कि आप कैकेयी के प्रति कुछ गुना मत, कैकेयी के प्रति कुछ नकारात्मक भाव मत, ये जो भी हुआ ये नियति का खेल, जो हुआ वह दैव के अनुसार, इसीलिए तुम कैकेयी के प्रति कुछ क्रोध मत। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऐसा ही प्रसंग है कि राम जब एग्जाइल होते हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है। ऑफ कोर्स राम जी का कोई पूर्व कर्म नहीं है, उसका उदाहरण है कि उनकी कोई गलती नहीं थी तभी, पर फिर भी उन पे ऐसी परिस्थिति आई, तो उन्होंने क्या किया उस समय, उसको स्वीकार। अभी जब उन्होंने स्वीकार किया तो ये स्वीकार क्यों किया, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। पर मैं आज जो ये डिस्कशन हो रहा है उसमें 3 चीजें हम देखने का प्रयास करेंगे। जब डेस्टिनी आती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसमें भगवान की क्या भूमिका है जब हमारा कर्म दैव आ रहा है हमारे, ये 3 चीजें देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी जब हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो और चाहे जिसको करने के लिए हमने कुछ किया भी नहीं, पर फिर भी वो हमारे जीवन में आ गया, तो उसको हमें स्वीकार करना है। हम एक एक्रोनिम देखेंगे आज, एक्ट, हाउ टू एक्ट इन द वर्ल्ड। तो पहला है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, स्वीकार करो, एक्सेप्ट व्हाट, accept that some bad things, some things will be beyond our control। कि कुछ परिस्थिति ऐसे है जो हमारे नियंत्रण के परे है, और कई बार होता है जो हमारे नियंत्रण के परे है उसको परिवर्तन करने में हमारा जो मन की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, उसको व्यर्थ गंवा देते हैं। तो स्वीकार, तो अभी ऐसे नहीं है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में चर्चा करेंगे उस समय में। अभी जब मैं यहाँ पे आया, आपने स्पीच में देखा कि मुझे क्रचेस लगते चलने, तो मैं जब 1 साल का था तो मेरे माता पिता मुझे पोलियो का वैक्सीन देने के लिए गए थे। मुझे पोलियो का वैक्सीन देने गए थे तो मैं एक छोटे से शहर में रहता था महाराष्ट्र में, और वहाँ पे जो जिस फ्रिज में पोलियो का वैक्सीन रखा था, पिछले रात को वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई चला गया, तो उसके कारण क्या होता है, उस वैक्सीन में जो पोलियो का जर्म था उसका डोज और बढ़ गया, तो वैक्सीन जो पोलियो डालने के लिए था उसी वैक्सीन से मुझे पोलियो हो गया।
तो अभी जब ये हुआ तो मेरे माता पिता को मुझे याद नहीं था, मैं एक साल का लोग था, नॉर्मल चल रहा था, अचानक गिर गया, उसके बाद कभी नॉर्मल चल नहीं रहा। तो तभी मेरे माता पिता बड़े दुखी हुए, क्या हो गया, पूछा, डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बताया क्या हुआ है। तो मेरे एक रिश्तेदार है अमेरिका में, वो उनको ये पता चला, सबसे पहली बार मामा है, बोले सबसे पहले वो डॉक्टर के खिलाफ कोर्ट केस करता। और मेरे पिताजी क्या है कि बड़े शांत प्रवृत्ति के थोड़े, उनके भगवद गीता फेवरेट वर्सेस तब रख के कि वो बोले कि अभी आप भी पता नहीं बांग्लादेश में कैसे है, तो बोले भारत में अगर आप कोर्ट केस करते हो तो आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी कोर्ट केस करते करते, रिजल्ट आने वाले हैं। और वो बोले कि अभी ये हो गया है तो हो गया है, अभी सुस्कार। तो एक तरह से ऐसे नहीं कि हमने कुछ मेरे ट्रीटमेंट के लिए प्रयास नहीं किया, बहुत कुछ किया, और उसके बाद अब तो थोड़ा बहुत तो चल सकता हूँ मैं। पर क्या है, कभी कभी हम अभी मेरे माता पिता की उसमें क्या गलती, वो तो जो डॉक्टर ने उनको बताया था कि आप वैक्सीन दे दो, वैक्सीन के लिए लेके गए, और कभी कुछ गलती हो गई और इसमें तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो मैं जब कई भारत में विश्व में ट्रैवल करता हूँ तो कई बार में ऐसे स्पेशल नीड्स के लोग होते हैं, तो जैसे कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनका आँख चली गई है, ऐसे लोगों के ग्रुप में जाके मैं कई बार लेक्चर देता हूँ। तो उसके बाद में जब बातें करता हूँ उनसे, तो कई बार देखता हूँ मैं कि so many people are fighting battles that were lost long ago. वो ऐसे युद्ध लड़ रहे हैं जो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई है और उसमें उनका एक आँख चला गया, उनका एक हाथ, एक ट्रेजिक है, तो अभी वो हो गया है, उस समय सोचते हैं अरे ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसे नहीं करना चाहिए था। अभी क्या होता है, ये सोचने से क्या फायदा है, जो हो गया है वो हो गया। जब हम दैव को नहीं समझते हैं, डेस्टिनी से क्या होता है, we stop fighting battles that are already over. हम सबके जीवन में ऐसी घटनाएं हैं जो हो चुकी है, उसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते, तो उसको स्वीकार करें। नहीं तो हमारा जो मन के स्तर पे बहुत हमारी मानसिक एनर्जी जो शक्ति जो है उसको हम वेस्ट करते हैं, और जब वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, जो हो गया है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो उससे कई बार एंगर आता है। एंगर जब एक्सटर्नल जाता है तो उससे एग्रेशन होता है, उससे वायलेंस होता है। जब लोगों में बहुत गुस्सा होता है, ऐसे क्यों हुआ, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने वैसे क्यों किया, तो फिर जब वो बाहर जाता है तो दूसरों पे आक्रमण करता है। पर जब वो अंदर जाता है तो वो डिप्रेशन हो जाता है, मतलब खुद के प्रति मैंने ऐसे किया, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ, उसने मैंने एक गलती हो गई, मेरी किस्मत ही टूटी है, मेरे जीवन में कुछ होने ही वाला नहीं। जब डिप्रेशन होता है तो फिर क्या लगता है कि मेरे भविष्य में कुछ अच्छा कभी होने ही वाला, तो कुछ करने का फायदा नहीं क्या। अभी डिप्रेशन जो है ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कभी कभी उसकी दवाइयाँ वगैरह जरूरी हो सकती है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारी जो जीवन की संकल्पना है, खुद की संकल्पना है, वह बहुत नकारात्मक हो जाती है। तो हाँ, ऐसे हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ हुआ है और शायद हमारी कोई गलती है नहीं, फिर भी हुआ है, हमको लगता है शायद हमारी कुछ गलती है फिर हुआ है। पर क्या होता है, इससे हमको लगता है कि मेरा जीवन ही पूरा टूट गया, कुछ अर्थ ही नहीं हुई, हताश हो जाते हैं। या फिर दूसरा क्या है, हम दूसरों को दोष देते, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, तुमने ऐसे किया इसलिए मेरा सब कुछ, मेरा जीवन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। तो अभी हम कौन सा एक्रोनिम देख रहे हैं? तो सबसे पहले एक्सेप्ट। तो अभी सवाल आता है यहाँ पे
कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी बुरा हो जाए, कि सब कुछ हमें स्वीकार करना है, या कभी किसी चीज का कुछ करना ही नहीं। तो वास्तव में यही सवाल लक्ष्मण जो है वो राम जी से पूछते हैं। जब वो वनवास में जा रहे होते हैं तो जब लक्ष्मण को पता चलता है तो लक्ष्मण बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये जो अपने पिता दशरथ महाराज से इतने क्रोधित होते हैं कि उनको अपने पिता के नाम से कोई उल्लेख नहीं करते। कहते हैं जो राजा है वह अपनी तरुण रानी के मोह जाल में फंस गया, इसके कारण वो धर्म को भूल गया। तो ये इनफैचुएशन हो गया, इनफैचुएशन होता है कि वो मोह में फंस गया। तो प्रभु श्री रामचंद्र बड़ी गंभीर रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं दशरथ महाराज के साथ हूँ। बोलते कि ये इनफैचुएशन नहीं है, वो ऑब्लिगेशन। उन्होंने वादा दिया था तो वो वादा पूरा करना जरूरी है। तो वो चाहते नहीं है पर उनको ऐसा करना पड़ रहा है। उन्होंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारी 2 इच्छाओं को पूरा करूंगा। तो लक्ष्मण कहते कि अगर इतना बड़ा वचन दिया तो हमको आज तक पता क्यों नहीं है, आज तक कभी इसकी बात क्यों नहीं किसी ने। तो कहते हैं तो क्या तुम कहना चाहते हो, क्या मैं इतना झूठ बोल रहे हैं, क्या तू ऐसे से झूठ तुमने पिताजी को बोलते हुए देखा हुआ है? तो क्या जब गुस्सा होता है ना तो किसी ना किसी को गुस्सा निकालना होता है। तो फिर वो ठीक है, दशरथ महाराज राजा बेहोश हो गए, कहीं ने ऐसे कैसे किया तुम्हारे साथ, वो तुमने तो अभी उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है। रामचंद्र जी कहते कि आप कहीं की निंदा मत करो, तुम जानते हो कि कैकेयी का जो प्रेम था मेरे प्रति गंगा के प्रवाह के समान था, शुद्ध जल के समान जो हमेशा बहते रहते। लक्ष्मण तो मानने वाले नहीं थे, बड़े दूर थे। वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे, एक रात में गंगा पूरी सूखी कैसे हो गई। तो कभी श्री रामचंद्र कहते हैं इसीलिए जब मैंने ये देखा उसकी प्रवृत्ति ऐसे पूर्णतया बदल गई है तो मैं समझ गया कि ये दैव का खेल है, तो इसलिए मैं स्वीकार करूंगा। तो जैसे बताया कि हमने कुछ किया नहीं है पर बड़ी विपत्ति आ गई है, तो क्या है वो दैव का खेल। लक्ष्मण अभिमान ने बताया, लक्ष्मण बोले कि केवल जो कमजोर लोग हैं वो अन्याय और अत्याचार को दैव बोल के स्वीकार करता है। जो शक्तिशाली लोग हैं, जो धैर्यवान लोग हैं, वो अत्याचार की चुनौती करते हैं, तो युद्ध करना चाहिए। ये कायर के समान तो दैव बोल के स्वीकार नहीं करना चाहिए। तभी श्री रामचंद्र कहते हैं कि मुझे यहाँ पे मेरा कर्तव्य क्या है, ये मेरा कर्तव्य था कि एक पुत्र के रूप में जो मेरे पिता की इच्छा हो, तो एक पुत्र के कर्तव्य के रूप में मैं राज सिंहासन पर चढ़ने वाला था, और एक पुत्र के कर्तव्य के रूप में मैं अभी राज्य छोड़ के जंगल में आया। तो इसीलिए यहाँ पे एक फर्क समझना है। जब हम कहते हैं हमारा जो वैदिक संस्कृति है, जो शास्त्री बताया है कि जो डिसीजन मेकिंग, जो कार्य करना है हमको, हमारा डिसीजन मेकिंग इट इज नेवर डेस्टिनी सेंटर्ड। अरे सब कुछ दैव ने फैसला कर लिया है तो सब कुछ स्वीकार करना, ऐसे नहीं है। ये जो है ड्यूटी सेंटर्ड है। ड्यूटी सेंटर मतलब मेरा कर्तव्य क्या, मेरी जिम्मेदारी क्या है, वो कैसे करनी है। अभी यही प्रभु श्री रामचंद्र जो बताया था रामायण में 2 बहुत ड्रामेटिक और ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स है। दूसरा कौन सा है? हाँ, सीता का अपहरण। जब सीता का अपहरण होता है तभी क्या प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि ये भी दैव है, हमें स्वीकार करना है। अभी वो क्या करते हैं?
वो एक सेना बनाते हैं, पांडवों के साथ संधि करते हैं और फिर युद्ध करने के तैयार होते हैं। तो क्यों? क्योंकि तभी वो देख रहे हैं कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का संरक्षण करना ये मेरा कर्तव्य है। तो ड्यूटी सेंटर्ड है। तो मतलब जब हम डेस्टिनी को स्वीकार करते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ स्वीकार करते हैं, पर हमारा कर्तव्य क्या है और कर्तव्य करने के लिए जो भी करना है वो हमें स्वीकार करना है। तो दिस ब्रिंग्स अस टू सेकंड पॉइंट कि जो एक्ट एक्रोनिम में है AC, काउंटर। काउंटर मतलब उसका प्रतिकार। Counter what needs to be changed for doing our duty. हमारा कर्तव्य करने के लिए जो परिवर्तन करना है वो हमें करना चाहिए। जो परिवर्तन में क्या हो सकता है, मान लिया कि आप यहाँ पे बैठे हैं और आप सुन रहे हैं, तो अगर आपको फैन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और आप फैन के नीचे तो क्या है, उससे आपको बहुत ठंडी लग रही है या आपको खांसी आने लगी है, तो क्या कह सकते हैं आप कि जो मैं फैन के नीचे बैठा हूँ ये दैव के कारण है। हो सकता है कि जब आप आए यहाँ पे, जो यहाँ पे बैठे, तो शायद आपने फैन देखा नहीं, या तभी आया था फैन बंद था, बाद में फैन चालू हो गया, तो फिर आप यहाँ पे बैठे हैं वो दैव से, तो यार क्या उसका मतलब आपको वहीं पे बैठे रहना जरूरी है? यहाँ थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम किसी भी चीज को नहीं बदल सकते। अभी अभी आप यहाँ पे आए हैं, आपका मेन फोकस क्या है? आपका मेन फोकस यहाँ पे ये है कि आपको जो अभी भगवद गीता का, शास्त्रों का जो संदेश है वो समझने का प्रयास करें। तो अगर आपको बहुत ठंडी लग रही है तो फिर क्या होगा, उसी में आपका मन लगा रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे कर्तव्य क्या है कि श्रवण करने की समझना। तो उसके लिए जो परिवर्तन करना जरूरी है वो हमें करना चाहिए। ठीक है, किसी को बोल सकते हैं फैन कम कर सकते हैं, तो कहीं और जाके बैठ सकते हैं, तो अगर कुछ कपड़ा कान पे लगा सकते हैं, जो भी करना है प्रैक्टिकली। ऐसे नहीं है कि जो भी परिस्थिति में है मुझे उसी परिस्थिति में रहना। तो क्या है, जब हमारे जीवन में डिफिकल्टी आती है तो दो अनहेल्दी रिएक्शंस, ये कैसे, आपको पेंडुलम पता है, तो एक से दूसरे को जाते रहता है। तो एक है कि एवरीथिंग शुड बी चेंज्ड, सब कुछ बदलना चाहिए, और दूसरा है नथिंग कैन बी चेंज्ड, कुछ भी नहीं बदल सकते। तो ये दोनों अनहेल्दी। अब ये एवरीथिंग कैन बी चेंज जो है, यह ईगो का लक्षण है। जो लोगों में अहंकार होता है, मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। तो ऐसे लोग कहते हैं कोई नियति नाम की चीज है ही नहीं, हम भी अपनी नियति बनाते हैं। इसका हम चर्चा करें थोड़ा सा बाद में। पर ईगो मतलब है सब कुछ बदल सकते हैं। क्या हम सब कुछ बदल सकते हैं? नहीं। अगर बहुत सी ऐसी चीजें हमारे जीवन में है, हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन है, उसको हम बदलना बड़ा मुश्किल है। कोई प्लास्टिक सर्जरी कर सकता है, पर कितने सर्जरी करते हैं? तो बहुत सी चीजें बदल नहीं सकते। और इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फेस का कॉम्प्लेक्शन है वो हम बदल नहीं सकते, और हमारे फेस में जो एक्सप्रेशन है क्या वो हम बदल सकते हैं? जरूर बदल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके चेहरे पे जो मुस्कान आना है वो ऐसे लगता है कि एक मुस्कान देने के लिए उनको $1 मिलियन देना पड़ेगा। मुस्कुराना इतना मुश्किल नहीं है। तो क्या किसी का चाहे कोई हमारा जो फेस कट है वो शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, पर जो फेस पे एक्सप्रेशन है वो हमारे कंट्रोल में है। और कोई अच्छा चीयरफुल है, कोई स्माइलिंग है, तो उसका भी एक अट्रैक्शन होता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति का चेहरा बड़ा आकर्षक होता है, पर वो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, हमेशा उनके आँख लाल होते हैं, वो हमेशा स्काउल कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद आकर्षण नहीं रहेगा। तो क्या है, नथिंग कैन बी चेंज, ये है इनसिक्योरिटी का लक्षण।
जो व्यक्ति में बहुत इनसिक्योरिटी होती है वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बहुत ही पावरलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो खुद को हताश कर लेता है। तो इसके बीच में है some things can and should be changed। ये जो है ये नम्रता का लक्षण, ये ह्यूमिलिटी है कि कुछ चीजें हम जरूर बदल सकते हैं। तो काउंटर दैट which can help us to do our duty, जो हमारा कर्तव्य है वो करने के लिए जो परिवर्तन करना है वो परिवर्तन करना जरूरी है। अभी जो सीता का अपहरण हुआ, तो ये नियति समझना किसी क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या है कि जब कोई घटना होती है, एक तरह से श्री रामचंद्र का वनवास हुआ तो उसमें राम की कोई गलती थी नहीं, एक तरह से। अभी सीता का अपहरण हुआ तो उसमें किसकी गलती थी? सीता का अपहरण हुआ दक्षिण, तो उसमें किसकी गलती थी? अभी सीता की हम कह सकते हैं गलती कि वो लक्ष्मण लंका से बाहर आए, सीता की गलती कह सकते हैं। पर क्या वो सीता की ही गलती थी? सबसे बड़ा कौन उसमें भूमिका था? रावण का षड्यंत्र था वहां, रावण का षड्यंत्र था। फिर रावण को सहयोग किसने किया था? मरीच ने किया था। फिर वहां पे लक्ष्मण और सीता में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। जब प्रभु श्री रामचंद्र वो हिरण के चले गए और फिर वो हिरण रामचंद्र के आवाज में बोलने लगे कि सीता लक्ष्मण ये मत करो। तो तभी लक्ष्मण कह रहे थे कि सीता कहते तुम लक्ष्मण अंदर क्यों नहीं जा रहे? और लक्ष्मण कहते राम ऐसे भी नहीं है, ये केवल एक मोह है। तो तभी सीता बड़ी विचलित हो गई। सीता को भी लग रहा था कि मैंने मेरी इच्छा के लिए राम को बाहर भेजा, और जब बाहर भेजा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई घर के नाम आया और फिर हम किसी बोलते हैं कि दुकान से आप कुछ खरीद ला सकते हो, लेकिन अभी हल्की नहीं है तो वो 2-3 घंटे बाद आते पास में आपको जाओ। तो जाते हैं और 15 मिनट होते, आधा घंटा होता है, 1 घंटा होता है, 2 घंटे हो जाते हैं, तो आ नहीं रहे। हमको लगता है क्या हो गया? तो हमको थोड़ा बोला जाता है, मैंने उसको भेजा था। तो फिर हम कुछ बंद करना है। सीता तो बोलती है कि लक्ष्मण तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर कोई यहाँ पे नहीं। पर बाद में सीता लक्ष्मण को थोड़ा डांटती है, लक्ष्मण चले जाते हैं। तो वहाँ पे जब लक्ष्मण को रामचंद्र जी देखते हैं, बोलते हैं कि तुम चले जाओ, सीता ने मुझे बहुत कुछ ऐसे बोला, तो सहन नहीं करता। तो रामचंद्र बोलते हैं वो तो चिंता में थी, चिंता में जो बोल दिया तुमने इतना सब के सीरियस नहीं लिया। तो लक्ष्मण चले गए थे, तो क्या हम कह सकते लक्ष्मण की भी गलती है उसमें? नहीं जाना चाहिए, रामचंद्र बोला मत जाओ। तो क्या होता है कई बार किसकी गलती है ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। और जब कुछ हो जाता है ऐसे, तो ऐसे नहीं कि सब लोग सीता को दोष दे, सब लोग लक्ष्मण को दोष दे। राम लक्ष्मण को थोड़ा डांटते हैं, क्या उसको ज्यादा बोलते नहीं। सीता लक्ष्मण के लिए बड़ा बुरा आरोप करती है। ऐसे नहीं लक्ष्मण उसको, जब लक्ष्मण की बातें हैं तो सीता भी नहीं हो गए, तुमने मेरे साथ ऐसा बात किया, चाहो तुम्हारे साथ ऐसा, तुम्हारा अपहरण हुआ, ऐसे नहीं बोलते। तो कभी कभी जो हो जाता है उसके बारे में ज्यादा एनालिसिस करना, ये उसका कुछ फायदा नहीं है। जो हो गया सो हो गया, तो अभी उसका कैसे करें? तो काउंटर कैसे? तो मैं जब फ्लोरिडा में था तो मैंने एक लेक्चर में जो अभी मुझे प्रसंग बताया था कि ऐसे ही प्रसंग में बताया कि पोलियो कैसे हुआ था। तो उसके बाद मुझे भक्त मिलने आए और बोले कि तो उनकी जो बेटी थी
उनको जो जन्म होने वाला था तो उनको NICU में लेके गए थे और तभी वहाँ पे वो हॉस्पिटल के स्टाफ ने कुछ गलती कर दी, उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं दिया और जब उसका जन्म हुआ तो बहुत ही सिवियरली न्यूरोलॉजिकली डैमेज था, उसके दिमाग के स्तर पर बहुत समस्या आ गई थी, तो उसको सेरेब्रल पाल्सी हो गया, बहुत सी बीमारियाँ हो गई। तो अभी तो उनको बहुत घबराया था और तभी उन्होंने उनके गुरुदेव से पूछा, वो मेरे गुरु भाई है, हमारे गुरुदेव से पूछा है कि जो हुआ है कि क्या इसे हमें हमारे कर्म के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए या क्या हमें वो हॉस्पिटल को सू करना चाहिए, जिससे कि तो मेरे गुरुदेव बताया कि अभी बेटी जो हुई है तुम्हें उसकी देखभाल करना ये तुम्हारा कर्तव्य है और अगर कभी ये कर्तव्य है वो जिंदगी भर उसको चलना कुछ पॉसिबल नहीं है, तो अगर ये कर्तव्य पूरे करने के लिए अगर तुम्हें कुछ सहायता मिल सकती है तो उस सहायता के लिए तुम्हें जो भी करना है वो कीजिए। तो उन्होंने वो हॉस्पिटल सू करने का फैसला किया, कोर्ट केस करने का, तो हॉस्पिटल की क्लियरली गलती थी तो हॉस्पिटल ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दिया और कोर्ट ने उनको अभी अच्छा थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, जो हुआ उसको परिवर्तित तो नहीं कर सकते, पर क्या है तो यहाँ पे अभी भारत में कोर्ट केस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला नहीं है, पर जो हमारे कर्तव्य के लिए जो करना जरूरी है उसके लिए कुछ परिवर्तन करना है तो परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। तो ये भी है, तो ऐसे कर्म का मतलब ये जब हम कर्म या दैव का स्वीकार करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हुआ है उसको हम स्वीकार करते हैं, उसके बारे में हम घृणा नहीं करते रहते, उसके बारे में नफरत नहीं करते, पर अभी जो हुआ है वो स्वीकार किया है, पर अभी जो भविष्य में जो होना है, भविष्य में जो करना है उसके लिए अगर कुछ परिवर्तन करना है परिवर्तन। तो यहाँ पे भी रावण ने षड्यंत्र बनाया और कभी प्रोग्राम से चले गए, फिर कृष्ण के लक्ष्मण भी चले गए क्योंकि सीता ने ऐसे बोल दिया, ये अभी सारा हो गया, जो हो गया उसको हम दैव कह सकते हैं, इसके कारण हुआ कैसे हो गया, जो हो गया तो हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें उसका अभी बैड सिचुएशन हो गई है तो हाउ टू फिक्स द बैड सिचुएशन, तो पूरी परिस्थिति हो गई उसको तो ठीक करो या उसको कम से कम उसकी जो बुराई है उसको थोड़ा कम कर दो, तो उसके लिए जो हमारा हमें काउंटर करना चाहिए। और आखिरी चीज जो है हम क्या एक्रोनिम क्या देख रहे हैं, सो ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मतलब क्या, उसके ऊपर जाना, उसके परे जाना। ट्रांसेंड ड्यूअलिटी बाय एब्जॉर्प्शन इन कृष्ण। जो जगत में द्वंद्व होते हैं, ये बदलना चाहिए कि नहीं, वो करना चाहिए कि नहीं, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, द्वंद्व हमारे मन में रहता है। तो क्या है, ये द्वंद्व के परे जाओ, कैसे भगवान में हमें हमारा खेत में भगवान में हम खुद को एकाग्र। तो ये कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या है वास्तव में। अभी मैं बताया कि मुझे पोलियो हुआ था, वो तो बचपन में हो गया था, 1 साल का था, मुझे कुछ याद नहीं है, पर मेरे जो उसकी पहली जिंदगी जो है तो मैं शायद 2-2.5-3 साल का था, तो हमारे घर में कोई रिश्तेदार पड़ोस में मिलने आए थे और वो मेरी माँ को थोड़ा सांत्वना दे रहे थे कि बहुत बुरा हो गया, आपकी बेटी का पोलियो हो गया है। तो मेरी माँ मेरी माँ के वचन याद आ रहे थे अभी भी, तो बड़े कॉन्फिडेंट क्लियर वॉइस में कहती है कि whatever he lacks physically, God will provide him intellectually. जो भी शारीरिक स्तर पर उसमें कमी होगी वो भगवान उसको बौद्धिक स्तर पे दे देगा। अभी शायद 2.5-3 साल का था, तो ये क्या बौद्धिक लक्षण दिखाया मैं पता नहीं मुझे, पर जो मान ने वैसे बोला वो उससे क्या हो गया कि I started identifying with my intellectual side much more than my physical side. मेरे बौद्धिक शक्ति थी उस पर ज़्यादा जोर देने लगा, उसके साथ में ज़्यादा पहचान मिली। तो बाकी बच्चों का सामान खेल नहीं सकता था, तो पर उससे मैं पढ़ाई कर सकता था, किताबें पढ़ना चाहता था, स्कूल में अच्छा था मैं। तो उससे क्या हो गया
कि तो बचपन में था कि हमने इंटेलेक्चुअल साइड पे ही ज़्यादा जोर दिया, पर 20-25 साल 20 साल के 17 साल के बाद जब मैं भक्ति में आया, गोविंदा पढ़े, तो वो गॉड विल प्रोवाइड, तो गॉड क्या है? क्या है कि हमारे जीवन में सबके साथ कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है इसका, पर ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व होते रहेंगे। पर कभी क्या होता है, कुछ लोगों के द्वंद्व होता है उनके जीवन में, और वो द्वंद्व की प्रतिक्रिया होती है, वो जब खुश होते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, दुखी होते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। ये इससे छोटी चीज को बहुत बड़ा बनाता है। तो दो लोग कहते हैं कि हम दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दिन कहे आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, और अगले दिन कहते हैं आई कांट लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। एक ही बहुत हमारा अनस्टेबल होते हैं, और डिप्रेशन का एक टाइप होता है मैनिक डिप्रेशन, एक दिन बड़ा उत्साह है, दूसरे दिन बिस्तर से नहीं निकलता है। तो ये जो द्वंद्व जो होते हैं, ये क्यों होते हैं कि हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है उनको बहुत सीरियसली लेते हैं। इस दुनिया में द्वंद्व होते रहते हैं, तो जब हम भक्ति करते हैं उससे क्या है, हम कीर्तन करते हैं, मंदिर में आकर दर्शन करते हैं, जप करते हैं, इससे क्या होना चाहिए? ये केवल एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, इसका प्रभाव क्या होना चाहिए कि जब हम मान लीजिए भक्ति में नए न्यू डिवोटी, और जो है सीजन डिवोटी, जो अनुभवी भक्त है, जो एडवांस भक्त है, थोड़ा बहुत भले शुद्ध क्यों ना हो, पहले क्या होता है हमारे जीवन में जो जगत होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जो भगवान छोटे से होते। मैं जब भक्ति में आया था 25 साल पहले, तो मैं मेरे एक रिश्तेदार को, मैं चाचा को भगवान के बारे में बता रहा था, 30 साल हो गए, तो अभी तो बोलते थे हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, वो वहाँ पे सुखी है, मैं यहाँ पे सुखी हूँ। तो क्या है मतलब भगवान को हम कुछ महत्व नहीं मेरे जीवन में, पर जब हम भक्ति करके प्रगति करते हैं तो क्या होता है हमारे जीवन में, ये जगत है वो छोटा हो जाता है और भगवान बड़े हो जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे नहीं कि जगत को हम महत्वपूर्ण नहीं मानते, जगत हमको जगत में सेवा करनी है, हमारी जिम्मेदारी है, जगत भी महत्वपूर्ण है, पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या होता है कि अगर जगत को बहुत बड़ा मानते हैं तो जगत में जो द्वंद्व होते हैं वो भी बहुत बड़े हो जाते हैं, पर जगत को हम इतना बड़ा नहीं मानते हैं तो उसके द्वंद्व भी छोटे हो जाते हैं। तो हाँ ठीक है, आज कुछ सुख आ जाएगा, कल कुछ दुख आ जाएगा, ठीक है, ये सब दैव से हो रहा है, पर भगवान हमेशा मेरे साथ है। भगवान से मेरा सानिध्य जो है वो सबसे बड़ा, अगर वो मेरे साथ में है तो फिर ये दैव के द्वारा कभी हमारे जीवन में सुख आएगा, कभी हमारे जीवन में सुख दुख आएगा। अच्छा, अधिकांश रूप से क्या होता है, हमें जब हमारे जीवन में दुख आता है वो याद है कि मान लीजिए कि मैंने कोई छोटी सी गलती की और बहुत बड़ा दुख मिल गया मुझे, तो वो याद रहता है। पर अगर हम थोड़ा ऑनेस्ट रहेंगे तो कई बार हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कुछ लकी ब्रेक भी आता है। लकी ब्रेक मतलब क्या है कि हम एक इंटरव्यू देते हैं, 1000 लोगों ने इंटरव्यू दिया पर हमको जॉब नहीं, अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो शायद हम वो बाकी 1000 लोगों से ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होंगे, उसको हम लकी ब्रेक कहते हैं। मेरा अच्छा लगता है वो क्या है, कभी कभी हमारे पूर्व दैव होता है वो हमें इस जन्म में हमने जो किया है उससे ज़्यादा भी देता है। मतलब मैं 10 का काम करता हूँ पर मुझे 1000 का श्रेय मिलता है, ऐसे भी होता है। कभी कभी हमने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं होती है, हम एक चैप्टर पढ़ के आते हैं और पूरा पेपर उसी पे आता है, तब अच्छा मार्क्स मिलता है। तो क्या होता है, तो ये जो है डेस्टिनी बनने हमारे लिए फेवरेबल भी होती है। तो इसीलिए जब कुछ नकारात्मक फेज में जा रहे हैं, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो उसको ज़्यादा सीरियस नहीं, ये हो रहा है कि एक फेज है,
ये एक सीजन है, एक ऋतु है। कभी एक ऋतु ऐसे हो सकता है हमारे जीवन में जब दैव से कुछ बुरी चीजें हुई। भागवत में कई बार ऐसे बोला जाता है कि ये काल विपरीत चल रहा है। बलि महाराज असुर को बोलते हैं कि ये काल विपरीत है, अभी तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। विष्णु की देवता को ही बताते हैं तो काल विपरीत चलता है, पर वो काल विपरीत हमेशा नहीं रहने वाला। तो सबके जीवन में कुछ काल ऐसे आएगा जो विपरीत रहेगा, तो कुछ काल होगा वो अनुकूल। तो इसीलिए अभी हमारा दैव क्या है, उसमें किस चीज को परिवर्तन करना है, किस चीज को परिवर्तन नहीं करना है, ये समझना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ACT में बताया एक तरह से ये लीनियर है कि A एक्सेप्ट, काउंटर और ट्रांजिट। पर वास्तव में ऐसे नहीं है, ये एक्सेप्ट है, काउंटर है, ट्रांजिट है। ये तीनों लिंक्ड है, एक्सेप्ट, काउंटर, ट्रांजिट। ये तीनों एक दूसरे को प्रभाव करते हैं। तो सबसे पहले जो है जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे भक्ति में ये आखिरी पॉइंट में कंट्रोल करूँगा कि जब भक्ति करते हैं, भक्ति के दो विभाग होते हैं। एक है कि हम कहते थे इमर्सिव भक्ति। इमर्सिव मतलब इमर्शन। इमर्शन मतलब क्या है? दुनिया से निकलो, दुनिया से अलग होके पूरा मन भक्ति में लगा दो, एकाग्र हो जाओ। ये जो इसका वर्णन भगवान भगवत के 12वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में, मयि मनाधत्स्व, आप पूरा मन हमारे मुझ में लगा। और फिर दूसरा है भक्ति का एक और विभाग है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब क्या है कि भक्ति मतलब ऐसे नहीं कि दुनिया से मुंह निकाल के हम सिर्फ भगवान के हमें इस जगत में भी सेवा करनी है, जगत में भी कर्तव्य करना है। तो ये जो इसका वर्णन भगवान 12वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में करते हैं कि इस जगत में भी हमें कुछ चीजें परिवर्तित करनी है, कुछ चीजों को स्वीकार करना है, कुछ चीजों को परिवर्तित। और कौन सी चीजों को स्वीकार करना है, कौन सी चीजों को परिवर्तित करना है, उसी का हम विचार करते रहेंगे तो हम उसमें फंस जाएंगे। सबसे पहले क्या करो, भगवान से संबंध जोड़ो। भगवान से हम संबंध जोड़ लेते हैं, मतलब अभी हम अच्छी साधना करते हैं, भगवान का जो सानिध्य जो है, भगवान का हमारे जीवन में जो प्रेजेंस है वो समझते हैं। उसके बाद में हमें अभी मैं इस परिस्थिति में भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ, इस परिस्थिति में मुझे क्या परिवर्तन करना है, क्या स्वीकार, वो सेवा भाव से अच्छी तरह से सुलझा सकते। भगवान कहते हैं कि मैं, अगर आप भजताम प्रीति पूर्वकम, अगर आप भजताम करोगे तो मैं आपको ददामि बुद्धि योगम, मैं आपको बुद्धि दूंगा। ऐसी बुद्धि जिससे आप योग कर सकेंगे, जिससे आप मेरे पास आ सकें। ऐसे चुनाव करोगे जिससे कि आप मेरे करीब आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का एक उदाहरण दो इसी के लिए, इमर्सिव और इंक्लूसिव। अभी प्रभुपाद जी जीवन भर वो प्रचार करने का प्रयास करते और प्रचार से कुछ ज़्यादा फल नहीं हो रहा। भारत में मतलब 30-40 साल प्रचार किया, कुछ फल नहीं हुआ। फिर वो वृंदावन चले गए और वृंदावन में जाके जप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, अपने ग्रंथ लिख रहे थे। और कई बार ऐसा था कि उस समय तो ऐसा था, बहुत से लोग जब थोड़े वृद्ध हो जाते हैं सोचते हैं मैं वृंदावन जाऊँगा और मैं वृंदावन में रहूँगा और वहीं पे मैं करना देह का। उससे क्या होगा कि मुझे कोई धाम लेने का जो लगभग अच्छी संभावना वहाँ पे। तो प्रभुपाद जी वृंदावन गए थे, वृंदावन में वहाँ रह रहे थे। तो प्रभुपाद वृंदावन के भाव में पूरी तरह से एकाग्र हो गए थे। प्रभुपाद जी का भाव था क्या कि उसे तुमको वृंदावन में रहना ही था। उनको प्रभुपाद को वृंदावन में साथ में लेकर सारे विश्व भर के वृंदावन की फिर प्रभुपाद जी गए वहां से, तो अभी प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद। तो हम दो प्रसंग दे सकते हैं कि एक था कि जब प्रभुपाद झांसी में थे और दूसरा था प्रभुपाद जी जुहू मुंबई में थे। तो प्रभुपाद जी झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज नाम का एक संस्था इस्कॉन के पहले से उपस्थापित था।
और वहाँ पे कुछ सहयोगी थे, मदद कर रहे थे उनको, और उन्होंने अभी बड़ा इनॉग्रेशन किया, तो उस शहर के जो मेयर थे वो भी आए थे इनॉग्रेट करने के लिए, अखबारों में भी बहुत सा उसका पब्लिसिटी हुआ था। पर कुछ समय के बाद वो जो वहाँ पे सपोर्टर थे वही बोले कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें किसी और काम के लिए इस्तेमाल। तो अभी प्रभुपाद जी के पास लीगल डीड वगैरह था, तो प्रभुपाद जी ने फैसला किया कि ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या करना। प्रभुपाद जी वहाँ से चले, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। पर जब जुहू में उनको ने कुछ लैंड खरीदा था, जमीन खरीदी थी, और वो जो जमीन बेचना था वो बड़ा धूर्त पॉलिटिशियन था, तो चाह रहा था कि पैसे भी दे दे और जमीन भी लगे। तो वो गुंडे लाके भक्तों को थोड़ा थ्रेटन कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, अगर उसको कृष्ण की जमीन छीननी है तो उसको मेरे मृत शरीर के ऊपर ओवर माय डेड बॉडी। तो वहां पे प्रभुपाद जी ने काम किया। तो क्यों पहले स्वीकार किया, बाद में काउंटर किया? तो क्या है, प्रभुपाद जी का भाव क्या था, मुझे कृष्ण की सेवा करनी। तो झांसी में लोग देख रहे थे कि छोटा सा शहर है, और वहाँ पे जो लोग भी थे वो इतने गंभीर नहीं थे भक्ति के लिए। यहाँ पे अगर मैं झगड़ा भी करूँगा, युद्ध भी करूँगा, तो इससे भगवान की कितनी सेवा होने वाली। तो ये ज़्यादा सेवा नहीं होती, तो यहाँ पे युद्ध करने की संग्राम, उसको परिवर्तित करने की कुछ फायदा नहीं, कुछ मतलब नहीं। पर जुहू जो था वो एक प्राइम प्रॉपर्टी थी, बॉम्बे विकास होना था। अभी जुहू हमारा मंदिर जो है वहाँ पे उसके आजू बाजू कई बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं, बॉलीवुड स्टार मंदिर में आते हैं, दर्शन देते हैं। अभी दर्शन देने के लिए आते हैं या दर्शन देने के लिए आते हैं, किसको वो आते हैं तो उनके लिए फोटो अपॉर्चुनिटी है, इंस्टाग्राम में कहीं भी बढ़ाते हैं, मैं इसका मंदिर में आता हूँ, ठीक है, तो किसी किसी प्रकार मंदिर में तो आ रहे हो। पर कभी प्रभुपाद जी ने सोचा कि यहाँ पे भगवान की बहुत सेवा हो सकती, और इसीलिए उन्होंने तो क्या है कि हाँ प्रभुपाद जी का इस तरह ऐसे कि आप कैसे करूँगा, ऐसे भाव नहीं। उनका भाव क्या था कि मुझे कहाँ कैसे सेवा कर सकते। तो जो मिस्टर एन जो थे, जो जिसका जमीन था वो देना नहीं चाहते पैसा करके, तो उनका हार्ट अटैक हो गया, तो उनकी जो पत्नी थी वो प्रभुपाद जी से युद्ध कर लिया। उन्होंने कुछ गुंडे भेज दिए, भक्तों का आक्रमण किया, वो जो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन था उसको उध्वस्त कर दिया, और फिर बच्चों को भक्तों का अरेस्ट करवा दिया, तो थोड़ा रिश्वत वगैरह बहुत कुछ करवा दिया। बाद में प्रभुपाद जी ने उसके खिलाफ युद्ध किया मतलब वो मोबिलाइज किया, पब्लिक ओपिनियन लाया, बहुत से लोगों को शौक हो गया, सारे ऐसे मंदिर तोड़ा गया। और बाद में जैसे पूरा जो लोगों का ओपिनियन और पॉलिटिकल सपोर्ट वो भक्तों के आ गया, तो उनसे सेंट को समझ में आ गया ये कुछ को नहीं कर सकते। तो फिर उसने लैंड डीड ट्रांसफर कर दिया। जब लैंड डीड ट्रांसफर कर दिया तो पैसे दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो फिर वो प्रभुपाद जी से पैरों पे गिरे, मुझे माफ कर दो। और अभी उसी में तो भक्तों के गुंडे रहते हैं, भक्तों को घायल किया था उसके। तो प्रभुपाद जी अभी पूरा चैप्टर खत्म हो गया। प्रभुपाद जी बोले यू आर जस्ट लाइक माय गॉड, आई टेक केयर, ओके, तुम मेरी कन्या के समान हो, मैं तुम्हारी। तो प्रभुपाद जी कोई किसी के प्रति शत्रुत्व नहीं। तो एक पहले बोले कोई युद्ध करूंगा मैं, पर युद्ध क्या था, उस व्यक्ति से कोई बुरा नहीं था, सेवा भाव। सेवा के बीच में कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे युद्ध करेगा, पर उस व्यक्ति को भी शत्रुत्व नहीं है। तो हम जब हमें किसी चीज को परिवर्तित भी करना है, काउंटर करना है, तो जब काउंटर जब करते हैं, हम काउंटर सर्विस के लिए कर रहे हैं, रिवेंज के लिए नहीं कर रहे हैं, बदले के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जब हम बदला कर रहे हैं तो क्या होता है, तो वो व्यक्ति हमारे मन में बैठ जाता है। और जब सेवा कर रहे हैं तो हमारे मन में क्या है, भगवान की सेवा। तो इस तरह से ये 3 चीजें हम करते हैं, एक्सेप्ट, काउंटर, ट्रांसफर। हमारे जीवन में जो भी क्यों ना है उसका सामना हम इस तरह से कर सकते हैं, उस परिस्थिति से है हम और अच्छे बन सकते हैं, हम भगवान के और करीब जा सकते हैं।
हम अच्छा और सेवा करने के लिए पात्र बन सकते हैं। सारांश में समराइज करूंगा कि अभी क्या चर्चा की। तो टॉपिक जो था हमारा अंडरस्टैंडिंग डेस्टिनी। तो सबसे पहले हमने डेस्टिनी, आप सबने भी आपको बताया डेस्टिनी क्या। तो डेस्टिनी का अर्थ क्या है कि ब्रॉडली थिंग्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हमारे जीव के नियंत्रण में नहीं है। वो क्या है कि पास्ट लाइव्स, एक्यूमुलेटेड कर्म, कि जो पूर्व जन्म का संचित कर्म है वह दैव है। और दैव मतलब क्या है कि जो हमें डिसप्रपोर्शनेट रिजल्ट मिलता है। जो हम छोटा सा कार्य करते हैं तो बड़ा अच्छा फल मिलता है, बड़ा बुरा फल मिलता है। तो वो क्यों हो रहा है? वो डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट जो है वो डेस्टिनी से आता है। तो अभी डेस्टिनी अगर समझेंगे तो उसका अर्थ क्या है, उसको प्रैक्टिकली क्या करना है, उसके लिए हमने क्या करना था? ए मतलब एक्सेप्ट, क्या स्वीकार क्या करें कि सम थिंग्स विल बी बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कुछ चीजें हम परिवर्तित नहीं कर सकते, तो उनको हमें स्वीकार करना। तो इससे क्या होता है कि अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम क्या है, वी आर फाइटिंग लॉस्ट बैटल्स। जो अभी कुछ नहीं कर सकते उसको हमारे मन हमें नहीं डालना है। तो दो अनहेल्दी चीजें हो सकती है कि जैसे एवरीथिंग कैन बी चेंज, वो इको है, चेंज एवरीथिंग। और जो इनसिक्योरिटी है वो क्या है? चेंज नथिंग, कुछ भी नहीं बदल सकता। और जो नम्रता है उसे हम समझते हैं कि कुछ चीजें हम बदल सकते हैं। तो उसमें काउंटर, हमें काउंटर करना है, सी का काउंटर है, काउंटर थिंग्स दैट हेल्प अस डू आवर ड्यूटी। हम सबका हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य करने के लिए जो हमें परिवर्तन करना है वह करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब कुछ चीजों को स्वीकार करना। तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो किस पे सेंटर्ड होना चाहिए? डेस्टिनी सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, ड्यूटी सेंटर्ड। तो मेरा यहाँ पे कर्तव्य क्या है और वो कर्तव्य में कैसे कर सकता हूँ, कर्तव्य करने के लिए मुझे क्या चेंज करना जरूरी है, किस हद तक मैं कर सकता हूँ। तो वो देखेंगे तो हम काउंटर कर सकते हैं। आखिरी का तरकीब था ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मतलब परे जाओ, ट्रांसेंड ड्युअलिटी बाय एब्जॉर्प्शन। तो क्या स्वीकार करना है, क्या बदलना है, यह इसी में हम फंस सकते हैं। तो इसी सबसे पहले क्या करो, इस तरह से हमारा मन भक्ति में लगाओ जिससे कि पहले हमको जगत बड़ा लग रहा है, भगवान छोटे लग रहे हैं। तो पहले क्या होगा, हमें भगवान बड़े लगेंगे, जगत छोटा लगेगा। जब ऐसे हो जाएगा तो उससे हम जो जगत की परिस्थिति है उसको और मानसिक संतुलन बरकरार रखते हुए देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में भक्ति के ही दो विभाग है। भक्ति का एक विभाग है कि सबसे पहले हम इमर्स कर लेते हैं भगवान, मतलब वो क्या करते हैं, वो ट्रांसेंड कर लेते हैं। तो ये तीन चीजें लीनियर है, पर भक्ति में ही सबसे पहले हम ट्रांसेंड कर लेते हैं और फिर बाद में भक्ति के भाव से ही, भगवान की सेवा के भाव से हम कुछ चीजें स्वीकार करते हैं, उन चीजों को परिवर्तित करते हैं। और जब हम इस तरह से कार्य करेंगे तो क्या जीवन में बहुत सी समस्याएं आएगी, पर उन समस्याओं से हम हताश नहीं हो जाएंगे, पर समस्याओं से हम आगे बढ़ सकते हैं। और डिफिकल्टीज, जो समस्या आएगी, डिस्ट्रेस, डिफिकल्टी सबके जीवन में आएगी, पर डिफिकल्टी से कुछ लोग बिटर बनते हैं, कुछ लोग बेटर बनते हैं। तो जब हम ये एक्ट करेंगे तो हम डिफिकल्टी से बेटर बनेंगे, बेटर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
Do we have time for questions? Hare Krishna. আপনাদের কোনো প্রশ্ন তো নেই? বলবেন বলো লাউডলি বলেন ও if we can't change anyone or anything, in spite of our contrary, then what should we do? Accept it or again counter? अगर बहुत प्रयास के बाद कुछ बदल नहीं रहा है तो फिर भी क्या हमें प्रयास करते रहना चाहिए या उसको स्वीकार करना चाहिए? जैसे कि ये भी परिस्थिति पे निर्भर होता है कि वो चीज़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। थोड़ा हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है। भगवद के 18वें अध्याय 15वें श्लोक में बोलते हैं कि जब किसी कार्य का फल नहीं मिलता है हमको तो उसमें कई चीजें हो सकती हैं। अधिष्ठान तथा कर्ता करणम च पृथक्विदा विविधा चैत्रिष्टा दैवम चैवास्य पंचम। तो मतलब उदाहरण देता हूँ, गार्डनिंग का जब कोई खेती करना चाहता है या गार्डनिंग करना चाहता है तो वो कुछ बीज लगाता है, वो बीज उगते नहीं, तो उसके ब्रॉडली 3 कारण हो सकते हैं। एक है कि सबसे पहले कि इनहॉस्पिटेबल सॉइल, जो जमीन है उसमें वो उगता ही नहीं है। अगर जमीन ऐसे है कि वहाँ पे उगने वाला नहीं है तो फिर वहाँ पे कुछ भी करे कुछ फायदा नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि उसमें हम कुछ भी करें वो फल नहीं मिलेगा। दूसरा हो सकता है कि वो इनकम्पैटिबल सीड है, मतलब वो जो सीड है वो सीड अच्छा है, उपजाऊ है, पर वो वहाँ पे लगने वाला नहीं। तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति है, उसको म्यूजिक में बहुत टैलेंट है, पर वो ऐसे जगह में है जहाँ पे कोई उसको म्यूजिक में कोई रुचि है ही नहीं। एक उसको इंस्ट्रूमेंट बजा अच्छा है पर उसमें कोई किसको इंस्ट्रूमेंट आता ही नहीं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं। और तीसरा है इनसफिशिएंट, चेष्टा करना। ठीक है, मैंने गार्डनिंग किया, समय पर मैंने पानी दे दिया, समय कब कितना पानी देना मुझे पता नहीं था, कब ऊपर फेंस लगाना है कभी नहीं लगाना मुझे पता नहीं था। तो हमें थोड़ा, तो हम जब कोई कार्य कर रहे हैं मुझे फल नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा, उसके बाद थोड़ा विचार करना। क्या वो बाह्य परिस्थिति अनुकूल नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, कि कुछ में ही वो क्षमता नहीं है इसमें नहीं हो रहा है वो, या मैंने प्रयास नहीं किया। कोई एग्जाम देता है, मैं अमेरिका में सैनफोर्ड में एक लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ पे एक दो अमेरिकन स्त्रियाँ वहाँ पे मिली, एक माता और बैठी थी। तो वो स्टैनफोर्ड में 6 साल से वो फर्स्ट ईयर में। क्यों फर्स्ट ईयर में? स्टैनफोर्ड ये टॉप यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड में एडमिशन भी मिलता है तो बुद्धिमान है। तो वो बोल रही थी कि उनकी बेटी है, वो 6 साल से अपना फर्स्ट ईयर का जो मेजर है, फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट चेंज करके फर्स्ट ईयर ही 6 बार कर, फेल नहीं हुई है वो। और बोले कि मुझे मेरा करियर कौन से फील्ड में पता नहीं, तो इसीलिए पहले फर्स्ट ईयर तो साइकोलॉजी में किया, फिर उसे सोशियोलॉजी में किया, फिर उसे फिजिक्स में किया, तो 6 बार वो फर्स्ट ईयर ही कर। I want to find my perfect career. ठीक है, perfect career होना है, पर क्या है उसके लिए 6 साल एक जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे perfect career क्या है वो शायद हमको पता भी नहीं चलता। कभी ऐसे होता है कि हम खुद कोई करियर ढूंढते हैं, कुछ प्रगति करते हैं, बाद में पता चलता है कि मेरा खुद का टैलेंट क्या है, मेरा खुद का इंटरेस्ट क्या है। तो पॉइंट ये है कि कभी-कभी हमें पता नहीं होता, तो जो जिस दिशा में जीवन जा रहा है उसमें हम जाने दो, उसको एक्सप्लोर करते। तो अगर कोई IIT इंडिया में IIT नाम का इंस्टीट्यूट है, तो कोई यहाँ पे कोई एग्जाम होगा, तो एक बार ट्राई किया फेल हो गए, 2 बार ट्राई किया फेल हो गए, तो अभी उसी एग्जाम में कॉलेज जाने के लिए है कोई 10 साल डाल देता है। कॉलेज 4 साल का है, कॉलेज में जाने के लिए आप 10 साल डाल, तो वो क्या है, ठीक है शायद में ये कॉलेज जाऊँगा नहीं,
पर ऐसे नहीं कि वो कॉलेज में नहीं जाऊंगा तो मेरा सारा जीवन दोस्त होगा, किसी और कॉलेज में डिग्री कर लो, आगे बढ़ो। बेसिकली प्रभुपाद जी इंटेलिजेंस का अर्थ बताते हैं to see things in their proper perspective। प्रॉपर पर्सपेक्टिव होता है कौन सी चीज कितनी महत्वपूर्ण है वह समझना। तो जब हम इसे समझेंगे तो फिर हम क्या कार्य करना है वह समझने का प्रयास करें और उस तरह कुछ हम कार्य कर सकते हैं। Any other question? हमें सबको पता है कि हम एक समय भगवान के साथ थे। हमारा जो पहला जन्म था उसमें हम जो कर्मों का फल भोग किया वो किस जन्म में था? तो हमारा पहला जन्म था। मतलब कि अगर हमारा 10 जन्म है तो 10 जन्म में हम पिछले जन्म का कर्म का फल भोग सकते हैं। तो पहला जन्म था उसके पहले तो हम भगवान के साथ थे, तो उस पहले जन्म में हमने किसका कर्म भोग किया? तो पहले जन्म में कौन सा कर्म था? जैसे कि भगवान बताते हैं कहना कर्मोपति, जो कर्म जो है वो प्रिंसिपल में सिंपल है। प्रिंसिपल मतलब क्या है? हमारे एक्शंस को हमको रिजल्ट मिलता है, और जो प्रैक्टिस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये कैसे है कि हर प्रेजेंट ऐसे होता है ना कि नियम तो एक तरह से आसान होता है, किसी ने किसी को मार डाला तो उसको सजा मिली, तो उसने क्यों मारा? क्या उसको नफरत थी? क्या उसको पैसा लिया था किसी मारने के लिए? क्या दूसरा व्यक्ति उस पर आक्रमण कर रहा था और सेल्फ डिफेंस में मारा? बहुत से परिस्थिति होती है। तो मेरा पॉइंट यह है कि कर्म जो है गहन है, और जब हम कर्म देखते हैं तो इसका जनरली फोकस जो होता है वो फॉरवर्ड होना चाहिए, बैकवर्ड नहीं। मतलब क्या कि हम जब देखते हैं कि अरे मेरे जीवन में ऐसे हो गया, मैंने पिछले में क्या कर्म किया था जिससे मुझे ऐसे हो गया, तो वो पीछे क्या हुआ है ये पता करना बड़ा मुश्किल है। जब अर्जुन को युद्ध करना होता है तो वो जो है उसको बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भीष्म गुरु उसके साइड में है और उन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाई है, और अर्जुन चाहते हैं कि मैंने सीखा है वो उनको दिखाओ, उनको करो, उनको उसमें गर्व हो, उनको नाज हो, उसके लिए उन्होंने सारा सीखा है और उनकी बुद्धि की गर्व है। तो जब कृष्ण के सामने वो अपनी दुविधा व्यक्त करते हैं तो कृष्ण को उनको किसी जन्म का कहानी नहीं बताते, अरे तुम किसी जन्म में भीष्म ये था, द्रोण ये थे और तुम ये थे और ये हुआ था वो हुआ था। नहीं, ये परिस्थिति आ गई है, इस परिस्थिति में तुम कैसे कर्तव्य कर सकते हो नहीं बोलते। तो क्या है, जब हम कर्म को लेके बैकवर्ड जाने का प्रयास करते हैं वो एक तरह से एक ब्लैक होल हो जाता है, उसमें फंस जाएगा। किसने क्या कर्म किया है, कौन सा कर्म किया है, क्यों ऐसे हुआ है। तो कर्म को लेके फॉरवर्ड मतलब क्या है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे कार्य से प्रभाव होगा। मैं अच्छा कार्य करूंगा तो उसका अच्छा फल मिलेगा, मैं बुरा कार्य करूंगा तो उससे बुरा परिणाम मिलेगा। तो कर्म का यही फोकस है, क्योंकि अगर बैकवर्ड देखने लगे तो कहाँ तक बैकवर्ड जाए। अगर मान लीजिए कोई किसी के कमरे में किसी घर में चोरी हो जाती और वो पुलिस के पास जाते, पुलिस कहती है चोरी तुम्हारे पूरा करना चाहिए। तो पुलिस को क्या देखना चाहिए, इसका पूर्व कर्म क्या ही नहीं देखना, पुलिस को देखना है कि हमारा क्या धर्म है, यहाँ हमारा क्या कर्तव्य है। जब पूर्व कर्म जाएगी तो कहाँ तक जाएगा पूर्व कर्म। अगर मान लीजिए नया नवजात शिशु है और वो रो रहा है तो क्या माँ को सोचना चाहिए बच्चा पूर्व कर्म क्या रो रहा है। अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो मदर नहीं मॉन्स्टर बन जाएगा। इसीलिए कर्म को लेके बैकवर्ड मत जाओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं बताना नहीं, कर्म को लेके अभी मेरे जो एक्शंस है, मैं जो एक्शंस करूंगा उससे भविष्य मेरा प्रभावित, कितना प्रभावित होगा वो अलग अलग, but my present actions will determine my future. Therefore, let me choose care. मैं ध्यान पूर्वक नहीं चुना। मेरा सवाल है, sometimes it's said that man is the maker of his own destiny.
So whether it is completely true from the view of spirituality or not. Thank you so much. अच्छा सवाल है, क्या हम हमारे ही डेस्टिनी के मेकर है? दो चीजें हैं इसमें कि मैन इज द मेकर ऑफ डेस्टिनी, ये ठीक है, बट मैन इज नॉट द मास्टर ऑफ डेस्टिनी। तो मेकर मतलब क्या कि जो हमने कर्म किए हैं उसी से हमारा दैव बनाया है। इस दैव को सिर्फ भगवान ने नहीं बनाया है, भगवान ने नहीं कहता है कि तुम्हारे जीवन में खाने वाला है, ये दुख सुखाएगा। हमारे ही पूर्व कर्म से हमारा दैव बनता है। हमारा डेस्टिनी जो है वो हमने ही बनाई है, और तरह से हमारे भविष्य जो होने वाला है वो हमारे कर्म से ही होने वाला है। इसीलिए हमारा दैव जरूर हम बनाते हैं, पर इसका मतलब कुछ लोग कहते हैं इसका मतलब है कि कुछ भी निर्धारित नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं, ऐसे नहीं है। वी आर नॉट द मास्टर ऑफ आवर डेस्टिनी। मास्टर मतलब क्या है कि हमारा पूर्व कर्म जो संचित हो गया है वो हमारा ही कर्म है, हमारे कागजात है, पर कौन सा पूर्व संचित कर्म कब आएगा वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इसलिए वी आर नॉट द मास्टर ऑफ आवर डेस्टिनी। लेकिन हम ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पे 10 यूनिट का काम करूँगा और यहाँ पे मुझे 1000 का फल मिलेगा, वो हम फैसला नहीं कर सकते। कभी कभी हम 1000 यूनिट का कर्म करेंगे और हमको 10 का फल मिलेगा। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि हमने जो कर्म किया उसको कुछ फायदा नहीं है। बट so we are the makers of our destiny, but we are not the masters of our destiny. Hare Krishna. Probably said my observations as well were so wonderfully describing how we are controlled by the winds of providence. So when reversal and difficulties come in the life of the pure devotee, he takes all those difficulties at the mercy of Sri Krishna. But when the same difficulties or any sort of difficulties come in my personal individual life, I feel it to be the resultant action of my previous karma, and which actually really makes me frustrated, and which leads me to the reduction in my Krishna consciousness, which is called Bhakti Chaitanya. So what should be the right attitude in times of all reversals? Hare Krishna. So would you mind answering in English? Thank you. ये सवाल है कि हमारे जीवन में विपत्ति आती है, तो शुद्ध भक्तों के जीवन में विपत्ति आता है, वो देखते हैं कृष्ण Would you mind answering in English? और बाकी सबको समझ में नहीं आएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझता है ना? I probably understand in Hindi. You can keep the samadhi after the lecture. Okay, तो आप वैसे I should answer in English. Yes. Maybe somebody else can translate in English for him afterwards. आप सुन लो, अभी नहीं, but somebody else can do that. Maybe you can record the answer और somebody else can translate. English में बोल सकते हो क्या आंसर नहीं बोल सकते। तो सवाल ये है कि जब हमारे जीवन में होता है कुछ, हम क्या शुद्ध भक्तों के जीवन में वो भगवान की योजना हो सकती है, और हमारे जीवन में हमारे कर्म से हो रहा है, तो हमको फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कितना कर्म है मेरा, अब तक मुझे भुगतना है, उसे हम हताश हो जाते हैं। तो कैसे हमें देखना है? तो अब ये समझना जरूरी है कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, कर्म ये एक फैक्टर है, और कृष्ण जो है वो सुप्रीम फैक्टर है। These two ये दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी मान लीजिए अभी यहाँ पे हमको गर्मी हो, तो गर्मी का एक कारण हो सकता है कि हम फैन के नीचे नहीं बैठे, पर गर्मी का एक कारण हो सकता है कि यहाँ पे वातावरण गर्म है। तो दोनों इनकम्पैटिबल नहीं है, दोनों साथ में जाते हैं। तो इसीलिए अभी जब हमारे जीवन में परिस्थिति आ रही है, तो वो कहाँ से आ रही है वो देखना महत्वपूर्ण है, पर वो मुझे कहाँ ले जाएगी वो
जब हमारे जीवन में डिफिकल्टी आ रही है। तो क्या शायद वो जो परिस्थिति आई है वो शायद मेरे बुरे कर्म से आई सकती है। मैंने अभी कुछ गलती की, उसका हो सकती है, मैंने भूतकाल में कुछ गलती की, उससे हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज कृष्णा's arrangement। ये कहना शायद थोड़ा उचित नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए मैं कुकिंग कर रहा हूँ और करते समय पे फोन आ जाता है, मैं बात करता हूँ, जो मैंने बनाना था वो जल जाता है, और जब प्रसाद के साथ होता है ये कृष्ण की योजना है, ये कृष्ण की योजना नहीं है, मेरी गलती है। तो हमारे जीवन में समस्या आती है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि कृष्ण की योजना है, बट there is some arrangement of Krishna in it, कि भले ही ये कृष्ण की योजना नहीं हो, इसमें कृष्ण की कोई योजना है। इस कार्य ये शायद मेरी गलती से आई है, पर ये कृष्ण की योजना के परे नहीं। कृष्ण का प्लान ऐसे होता है कि वो हमारी गलतियों से भी वो अपना प्लान आगे बढ़ा सकता है, किसी और की गलती से भी कृष्ण अपना प्लान आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसे नहीं है कि हमारा पूर्व कर्म इतना बुरा है कि हमें हमारे लिए कृष्ण का कोई प्लान है नहीं, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए हमें we should not be karma conscious, we should be Krishna conscious। कर्मा कॉन्शियस जब हो जाते हैं ना कि अरे मैंने ये कर्म किया था, उसने वो कर्म किया था, उसने वो कर्म किया था, उससे मजाक हो जाए। ठीक है, जो भी कर्म क्यों ना हो, कृष्ण की योजना जरूर है। तो हम कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं तो हम कर्म को डिनाई नहीं कर रहे, टाल नहीं रहे, उसके ऊपर देख रहे। मया अध्यक्षेण प्रकृति के अधीन कृष्ण का कर्म करने होंगे, पर प्रकृति के परे भगवान। तो हमें फोकस करना है क्या है, ऑन कृष्णा's plan, बी कृष्णा कॉन्शियस। तो कृष्णा कॉन्शियस ये एक बड़ा कॉन्शियसनेस है, और उसके बीच में है कर्मा कॉन्शियस। तो कभी कभी कर्मा कॉन्शियसनेस ओके है, पर कर्मा कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। मेरे कर्म से आया है ये, पर यहाँ पे कृष्ण की क्या अर्जुन है, मैं कृष्ण की यहाँ पे कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो अभी जब आप जानते हैं वो अक्षय पात्र की लीला, जब द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया गया था जिससे अन्न असीमित मात्रा में, जब तक द्रौपदी अन्न ग्रहण नहीं करी, तो दुर्योधन ने ऐसी योजना बनाई, षड्यंत्र बनाया कि दुर्वासा मुनि वहां पे दोपहर हो गई जब द्रौपदी ने अपना अन्न ग्रहण कर लिया, और तब उनके धर्म संकट हो गया, हम कैसे कुछ खिलाएंगे। तो तभी क्या हो गया, तभी कृष्ण वहां पे आ गए। कृष्ण ने कहा मुझे भूख लगी, तो द्रौपदी ने कहा पहले तो मैं कुछ नहीं खिला पा रहे थे, मेरे भगवान कुछ नहीं खिला पा रहे, तो बड़ी विपत्ति पे विपत्ति आ गई। कृष्ण जाके देखो कुछ है क्या, तो वहां पे देखते हैं क्या थोड़ा सा शाक का टुकड़ा होता है, कृष्ण बोलने। तो अभी यहाँ पे सवाल हो सकता है कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्लेट है, अक्षय पात्र। हमारे घर में कोई सांस्कृतिक चीज रखते हैं, तो हमारे घर में कोई प्लेट पे हम कुछ ऐसा अन्न रखेंगे नहीं। अगर हमारा कोई स्पेशल प्लेट है, हम कोई सिल्वर प्लेट है, गोल्ड प्लेट है, जो हम स्पेशल गेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको तो बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। पर क्या है, यहाँ पे ऐसे प्लेट में वो अन्न कैसे बच गया। और द्रौपदी जब जंगल में गई थी तो उनके साथ कुछ मेड सर्वेंट गए थे, वो जाने की जरूरत नहीं थी, पर वो द्रौपदी से इतने श्रद्धावान थे, आ सकते हैं, हम जाएगा। तो शायद उनकी किसी मेड सर्वेंट ने गलती कर दी होगी, इसी कारण वो एक पार्टी का वहाँ पे ले गए, पर वो उनके घर में था, तो उनके किचन में था कह सकते हैं, तो वो उनकी गलती कह सकते हैं। पर क्या है, भगवान इतने एक्सपर्ट है कि वो उस गलती से तो एक छोटा अन्न का थोड़ा रह गया, उससे वो अपनी योजना आगे बढ़ा। तो इसीलिए
डोंट वरी टू मच क्या उसका कर्म है, फोकस इस पे करो कि यहाँ पे कृष्ण की योजना। और जब ये भाव रखेंगे तो हम ज़्यादा नकारात्मक भाव नहीं रखेंगे। मैं इंडिया में कॉलेज में ऐसे ले रहा था, कैसे ले रहा था, थोड़ा बहुत लेफ्टिस्ट कॉलेज था ये, मतलब क्या उसमें धर्म और खिलाफ होता। तो वहाँ पे एक विद्यार्थी ने बोला तुम ये कर्मों के बारे में बात कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि जब किसी आदमी बुरा हुआ है वो उसके पूर्व कर्म का ही फल है, मतलब उसने बुरे कर्म किए। तो उसने कहा कि तुमने पोलियो हुआ है, इसका मतलब तुमने पहले कुछ बुरा कर्म किया है। तो तुमने बुरा कर्म किया है तो तुम्हें क्या अधिकार है हमें बताने का, हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। तुम ये भगवान के बारे में तुम्हें बताने का क्या अधिकार? मैंने बोला हाँ जरूर ये सही है, मैंने कुछ कर्म किया होना चाहिए इसका भगवान है। पर भगवान इतने कृपालु है कि हमारा कुछ भी कर्म क्यों है भगवान हमें स्वीकार कर। तो तुमने मेरे से कुछ बुरा कर्म नहीं किया है, तुम्हें तो भगवान और आसान से स्वीकार कर। बी कृष्ण कॉन्शियस, नॉट कर्म कॉन्शियस। थैंक यू वेरी मच। So my question is, many times it happens that when we face problems, then we can't remember anything that we have learned from our superiors. So what should you do at the time when we feel frustrations? तो जब समस्या जब आ जाती है तो जो भी हमने सुना है वो याद नहीं रहता है, तब पूरा फ्रस्ट्रेट जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ये स्वाभाविक है, तो क्या है कि हमारा मन विकसित हो जाता है, तो उस समय जो बौद्धिक स्तर पर सीखा है वो याद रखना आसान नहीं है। मेरा एक मित्र है अमेरिका में, वो कैलिफोर्निया में फायर फाइटर है। तो जब बड़ी बड़ी भीषण अग्नि होती है तो जब वो जाते हैं वहाँ पे तो एक बड़ी अग्नि देखकर हम संसार रावण जैसे होता है वो, तो बड़े बड़े फायर फाइटर जो होते हैं वो भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो जो नया फायर फाइटर होता है वो तो जाएगा वहाँ पे, वो वाटर होज लेके, वाटर पाइप लेकर पूरा पाइप उसके हाथ से दिया क्या है। तो पर जैसे वो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभवी होता है, तो क्या होता है उसका ट्रेनिंग जो होता है वो काम करता है। जो सीजन फायर फाइटर है, जो अनुभवी फायर फाइटर है, वह भी थोड़ा थोड़ा सा भयभीत हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर वो फास्टर रिकवर करता है। ठीक है, फायर धरे वहाँ पे सिविलियन लोग रह रहे हैं, वहाँ पे आपको फायर नहीं आ जाएगा, वहाँ पे फाइट करते यहाँ पे होता है। तो कैसे है कि हमारा जो है जो प्रैक्टिस, भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। तो प्रैक्टिस से क्या होगा, हमारा जो स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट्स है वो और शार्प हो जाएगी। तो जो हम कर सकते हैं वो कीजिए। तो ठीक है, अगर हम उस परिस्थिति में भूल जाते हैं तो ठीक है, शायद कुछ होकर बुरा हो गया तो 1 घंटे के लिए भूल जाते हैं, 1 दिन के लिए भूल जाते हैं, 1 हफ्ते के लिए भूल जाते हैं। तो जब भी स्मृति वापस आ जाएगी तभी सही रास्ते पर पहुंचे। और जितना हम एक सही रास्ते में आने का प्रयास करेंगे उतना क्या होगा, वो एक आदत हो जाएगी, वो इंस्टिंक्ट्स बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे ये आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या है कि एक पेशेंस रखो। ऐसे हम खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जब हमारी दुनिया बहुत बड़ी लग रही है और हमारे अभी भगवान छूटे हैं, तो अभी हम दुनिया में जो हो रहा है उससे प्रभावित नहीं बोल नहीं सकते। तो पेशेंस रखे, प्रैक्टिस करें, ये पहली चीज़ है। और दूसरा है कि हमें एसोसिएशन जरूरी है। तो हम सत्संग में आके वचन सुन सकते हैं, पर हमारे खुद के कुछ पर्सनल फ्रेंड्स होने चाहिए। हमारा पर्सनल गाइड हो सकता है, जिनको हम कॉल कर सकते हैं, जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो तभी हमारी शायद बुद्धि काम नहीं करेगी, पर क्या है किसी और की बुद्धि काम करेगी।
एक इंटेलिजेंस, बुद्धि का एक लक्षण है। इंटेलिजेंस मीन्स टू नो व्हाट टू डू व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू डू। अभी इसका क्या मतलब है कि मुझे क्या करना है जब मुझे क्या करना है पता नहीं। इसका मतलब क्या है कि थोड़ी सी अगर खांसी हो गई है तो मुझे पता है कि थोड़ा सा ये दवाई ले लो, ये कर लो, वो कर लो। और बहुत ज़्यादा खांसी हो गई, मुझे पता नहीं क्या करना, तो मुझे पता क्या करना है डॉक्टर के पास। तो ऐसी परिस्थिति सुन रहा है हमारे जीवन में क्या है, पर हमें खुद को पता नहीं क्या करना है, तो हमें जो एक्सपर्ट है ऐसे कुछ एक दो वक्त तो हमारे होना चाहिए कि हमारे पर्सनल फ्रेंड्स हो, पर्सनल गाइड्स हो, तो उनको हम एक्सेस कर सकें। और तीसरा है टेस्ट। हमें देखना है कि मुझे मेरी परिस्थिति में किस चीज में भक्ति में टेस्ट है। तो कैसे है कि कुछ चीजें हैं दे आर गुड फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छी है, और कुछ चीजें हैं दे फील गुड टू अस, वो हमें अच्छी लगती है। जैसे हम खाने में देख सकते हैं कुछ चीजें स्वादिष्ट होती है और कुछ चीजें जो न्यूट्रिशियस होती है, पौष्टिक होती है। तो अगर ये दोनों सर्कल एक हो जाएगा तो इतना आसान हो जाएगा, सारे स्वादिष्ट अन्न जो है वो पौष्टिक भी होगा। पर ऐसे नहीं है, पर ये सर्कल जो है ये दोनों ऐसे नहीं कि बिल्कुल इसमें ओवरलैप नहीं होता है। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि वो मेरे लिए अच्छा भी है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो मान लीजिए मुझे फिलोसॉफी क्लास सुनना इतना अच्छा नहीं लगता है, पर कितना अच्छा लगता है, सारे सब कितना अच्छे लगते हैं, पर ये जो कीर्तन है या ये सॉन्ग, ये गीत है, ये भजन है, ये ट्यून है जो अच्छे लगते हैं। तो फिर क्या है कि हम वो बार बार सुने, या शायद हमको ये विग्रह भगवान के अच्छे लगते हैं, ये ड्रेसिंग, ये दर्शन अच्छा लगता है, ये कथा हमको अच्छी लगती है, ये श्लोक अच्छा लगता है। जो भी हमें भगवान की भक्ति में अच्छा लगता है, इसको रूप गोस्वामी कहते हैं उद्दीपन। ये उद्दीपन मतलब हमारा ये स्पिरिचुअल स्टिमुलस है। तो हमें भक्ति में क्या अच्छा लगता है वह हम बार बार कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं कि हमारा साधना छोड़ के, साधना के परे ये हम और कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वह करने की आदत हो जाएगी। और फिर जब हम विचलित हो गए किसी परिस्थिति से, शायद बुद्धि काम नहीं करेगी, पर अगर हमने आदत बना ली, जब भी मेरे को समय है तो कीर्तन सुन लेता हूं, तो फिर जब मन विचलित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, तो बिना किसी विचार के हाँ कीर्तन सुन ले जाएगा। तो इसीलिए तीन चीजें हैं, पेशेंस, एसोसिएशन और टेस्ट। तो डोंट बीट योरसेल्फ, पैट योरसेल्फ, एनकरेज योरसेल्फ। खुद को प्रोत्साहित करो और धीरे धीरे हम सब और अच्छा जो परिस्थिति में भी, विपत्तियों में भी हमारी प्रतिक्रिया और जल्दी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की जय, श्रीपाद चैतन्य जगन्नाथ प्रभु की श्री प्रभुपाद की गौतम नंदी। सबाई प्रभुर करताली দিয়ে সবাইকে